करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज का एक तुरानंद जी के पत्र हैं और समरी करेंगे अशोक जी। अशोक रहेजा, चलिए शुरू करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। नमस्कार। और सभी साधकों को मेरा नमन। आई एम प्रेजेंटिंग समरी ऑफ लेटर नंबर 117 to 129 written by स्वामी तुरानंद जी to various साधक्स। तो हिंदी में इसमें पत्रों के क्रमांक अलग हैं, तो मैंने इंग्लिश के हिसाब से ही चला हूँ। ठीक। लेटर नंबर 117 describes about relation of a sadhak with his guru. So here Swamiji says, I am happy to know that you have been blessed by Holy Mother. Now through her grace you will be able to know everything. She herself will make you realize that Guru and chosen deity are identical. Means जो आपके इष्ट हैं और गुरु वो सब दोनों एक ही चीज। Means chosen deity is perceived in the Guru. पावर में भी दोनों सेम है। इसमें जैसे बताया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि dwell pure devotion for Holy Mother, all your bonds will be cut. उनके प्रति शुद्ध बुद्धि करेंगे तो तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे। इसके बाद लेटर नंबर 118 to 121 ये मैंने क्लब कर दिए हैं क्योंकि एक ही साधक को लिखे गए हैं, मैंने इकट्ठा ही इसका वो किया है। These letters have been written to one sadhak who probably had discontinued his sadhana and so his mind was in turmoil. So here Swamiji has elaborated as to how to start again with one pointed mind. मतलब एकाग्रचित्त होकर अगर करेंगे तो फिर हमारी साधना फिर उसी रास्ते पे आ जाएगी। He says, if a sadhak does not have this passion and intense love for sadhana, he will feel uncomfortable and his mind rushes towards physical comforts and gradually he resumes his meditation. Swami says, in such time, it is very beneficial to have association of a saint, that is of a great soul, who has self-control and renunciation. मतलब एक महान साधु के साथ अगर हम उसको एसोसिएट करेंगे अपने आप को तो हमारी साधना वापस उसी रास्ते पे आ जाएगी। He says you start your sadhana again with might and main of God, and you will see that all works are accomplished smoothly without making any special efforts. The doer does not even know how the work has been done. ऐसी स्थिति में फिर हमें पता ही नहीं चलता कि काम करने वाला कैसे काम हो गया। तो have company of holy and study holy scriptures. पवित्र पुस्तकें पढ़ें और पवित्र सत्संग में रहें। Within few days you will get peace by His grace, and your mind will enjoy the taste of sadhana again. Worship the Lord and don't put your mind on anything. Lord will show His mercy again. One should not sing the song of despair all the time. Have faith in God and love for human beings. Have faith in words of scriptures and holy men. स्वामी जी कहते हैं all power is within you. सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है. Eventually these powers will manifest and will push you towards your goal. When a person exerts himself to the utmost capacity with self-confidence and then surrenders to God, this is true resignation. पूरा समर्पण करेंगे तभी हम इस पे सफल होंगे। तो स्वामी जी ने फिर आगे 121 नंबर लेटर में बताया है कि anyone can say कि God does not exist, but that doesn't make the God non-existence. किसी कहने से non-existence नहीं होगा, God तो exist करता ही है. The very existence of everything is God. Existence cannot be non-existence. There is no reason that one cannot realize God. One can realize God if he has
if he has intense longing, right efforts, and perseverance, and true guru. तीव्र इच्छा और ट्रू गुरु है तो उसकी साधना में सफलता मिलेगी ही मिलेगी. जैसे क्राइस्ट के न्यू टेस्टामेंट मैथ्यू 7.7 में भी लिखा है, he who desires receives, ask and it shall be given. इसके बाद letter number 122. This deals with the question of nirvana mukti, that is, upon attaining this liberation, one does not have to reborn in the world. फिर पुनः संसार में आना नहीं पड़ता. But here Swamiji says, one who has to come again and again in the world, impelled by the compassion to do good, how can he have absolute nirvana? This is why Sri Ramakrishna said to Swami Vivekananda, he who was Rama and Krishna is now Ramakrishna in this body, but not from the standpoint of your Vedanta. यहाँ स्वामी जी ने ये इसलिए कहा है क्योंकि वेदांत में जो अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट्स है उसमें कहा गया है कि जीव एंड ब्रह्मन आर टू बी वन. उसमें फिर वापस जीव को आना नहीं पड़ता. तो इसलिए स्वामी Ramakrishna wanted to clarify that consciousness of Sri Ramakrishna was the consciousness of God and not of the Jiva. मतलब जो ईश्वर है वो चिरकाल के लिए ईश्वर ही है. मानव देह धारण करके जीव के समान प्रतीत होने पर भी वो ईश्वर ही रहते हैं, जीव नहीं हो जाते. गीता में भी लिखा है ना, अध्याय 4 के श्लोक 5 और 6 में कि many a birth I and you have passed, I know them all, but you know them not. Though I am unborn and eternal by nature, I accept birth through my own Maya. ईश्वर कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते पिछले जन्मों के बारे में. उसके बाद लेटर नंबर 123. This deals with the three schools of philosophy of Vedanta, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत. तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि according to dualistic and qualified non-dualistic system, द्वैत और विशिष्टाद्वैत के हिसाब से the world is not considered to be unreal, rather it is real. Means Prakriti, Jiva and God, these three are eternal and real. Both dualistic and qualified non-dualistics admit that world is full of misery, but they say it can be joyful by the grace of God. On the other hand, जो अद्वैतवादी हैं वो क्या कहते हैं, they know that the world is full of misery, so they sever all connections with the world and aspire for nirvana or final liberation. In their opinion, the world is unreal and after death they merge into Brahman and leave the world forever. ये अद्वैतवादी का सिद्धांत. तो in Bhagavatam, Krishna says to उद्धवा को कहते हैं कृष्ण के there are three kinds of yoga for spiritual enlightenment of human being: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, path of devotion. Jnana Yoga is meant for those whose minds have been withdrawn from sense objects and its results are renunciation of the world, cessation of birth and attainment of nirvana. For them, Brahman alone is real and world is unreal. But those who have attachment for the world, they consider this world as a divine manifestation of God. So they do not say that world is unreal, but यहाँ पे there are special rules also. क्या? Some even after attaining knowledge and becoming recipients of nirvana do not accept it. Rather, they assume human birth by embracing spontaneous divine law. स्वामी जी ने मैं बहुत बार कहा भी है अपने लेक्चर्स में कि who are liberated in life but they again express their eagerness to be born again. वो वापस से आना चाहते हैं इस संसार में, relinquishing their personal liberation for the good of mankind. तो लेकिन इसके लिए स्वामी जी ने कहा कि अगर वापस आना है तो उसके लिए first one will have to attain knowledge or pure devotion through renunciation. Then he can have a choice either to take another birth or to attain nirvana. But still it is to be born again, better to be born again as a companion of Lord for the good of mankind and then to attain nirvana.
उसके बाद letter number 124. This letter explains what is knowledge. Here Swamiji says knowledge is of two types. दो प्रकार की है, स्वसंवेद्य और परसंवेद्य. Knowledge by oneself, which comes from one's own experience. जो शास्त्र पाठ से उसको मिलती है या महापुरुषों के संगत में आके मिलती है. That is which is true and can be verified with scriptures and signs of illuminated souls. लेकिन जो परसंवेद्य है, which is knowledge based on external signs, this has no personal experience. So he cannot properly ascertain self-knowledge and still in life. An illuminated soul has clear knowledge of the real and unreal. Therefore, his mind is never identified with unreal objects. On the other hand, an ordinary person is identified with unreal objects, and due to this ignorance, he suffers from unending miseries. Unending miseries. हम कहते हैं कि जो ignorance है, ये बंधन है. Ignorance is a bondage, and knowledge is liberation. When this unity knowledge dawns on a person, he becomes Jivan or liberated in life. इसके बाद लेटर नंबर 125 स्वामी तुरानंद जी ने स्वामी माधवानंद जी को लिखा है. यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं, नो पर्सन इज कॉज ऑफ एनीथिंग, एट द रूट ऑफ ऑल इज गॉड, एवरीथिंग हैज emerged from him, never forget him, fix your mind on God. If he is pleased, there is no more anxiety or fear of anybody's displeasure. We need not pay much attention to external causes. Your lover is in yourself, and your enemy is too within yourself. सब कुछ हमारे अंतःकरण में ही स्थित है, ये स्वामी कह रहे हैं. उसके बाद लेटर नंबर 126 यहाँ पे स्वामी साक्षी बन के देखना है. If we can live in this world as witness, then we can enjoy merriment. Otherwise not. He says, however, it is difficult, extremely difficult to remain as witness in everything we do. मुश्किल है. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो प्रे करते हैं, may the divine mother always keep us close to her and not allow us to run away and get entangled in this maya. तो ताकि हम सब कुछ साक्षी बनकर देख सकें. उसके बाद लेटर नंबर 127 discusses about meditation. यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं, doubts cannot be removed by correspondence and studying books, but one has to make efforts. खुद ही प्रयास करना होगा. One should follow instructions of the scriptures and of his guru. Only then doubts can be dispelled from the mind. You must keep your mind fixed on God, and gradually you will be united with him. Meditation helps a lot in this issue. One should only follow instructions of his own guru and not listen to everybody or anybody. Then only will bring the success in spiritual life. Letter number 128. ये जो पहले लेटर 118 to 121 लिखे थे स्वामी जी ने एक साधक को, जिसके साधना में विघ्न आ गया था, तो उसको ही ये लिखा है लेटर. तो यहाँ पे स्वामी का, he says weakness is an innate tendency of human being. If you say I am weak, weakness will not go away. संकल्प शक्ति जैसी होगी वैसी हमारी सृष्टि बनती है. So rather you should cultivate positive thoughts. I must be strong. Try to implement teaching of your guru into your actions. By all means, you should continue your sadhana and accept the thing with earnestness which you think will make you strong. Letter number 129. This letter deals with anxiety of sadhak about initiation. मंत्र दीक्षा के बारे में उसकी कुछ anxiety है. तो यहाँ स्वामी कहते हैं, initiation is definitely helpful in spiritual life. Main thing is to have intense longing to attain God, to engage oneself wholeheartedly in that task. Then success will automatically come. Then he says, I'm delighted that you are studying the Gita. Gita is embodiment of all scriptures. The Gita is the heart of the Lord. It has no parallel. A person who
practices the techniques of Gita in his life, his mind becomes pure and person attains supreme peace. Yeah, फिर स्वामी जी कहने कि he says, surrender yourself to Lord. He will make you do what is good for you. Offer your past, present, and future to him. You will see he will arrange everything for you. That's all. Now, वेरी गुड वेरी गुड Very good. एक्चुअली ऐसा है कि यह लेटर्स जो हैं ये मैंने भी पढ़े हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, हम लोग बोलते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी के टीचिंग जो है इटर्नल कंपेनियन, उसको रेगुलरली पढ़ने के बाद जो साधक है उनको करना चाहिए। और उसी प्रकार से ये स्वामी तुरानंद जी के जो लेटर्स हैं ये भी इसी प्रकार के हैं जो प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। एक प्रत्येक लेटर के अंदर साधना के संबंध में इतनी इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, जैसा अभी बड़े सुंदर ढंग से अशोक जी ने वो अलग अलग एक एक लेटर की इम्पोर्टेंट बातें निकाल के हमको बताई है। सो मेरा ये सुझाव है कि ये तो हम 1 से वीक कर लिया, एक रिव्यू कर लिया, समरी कर लिया, बट आई वुड सजेस्ट दैट आप लोगों को ये जूम भी अपने वो सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को मिल ही रही है, उसको आप अपने पास में मोबाइल फोन के अंदर परमानेंटली रख लीजिए और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा एक एक दो पे आर्टिकल, एक एक दो क्वेश्चन, सॉरी एक एक दो लेटर्स जो है उसको पढ़िए, आपको बहुत लाभ। तो थैंक यू वेरी मच अशोक जी, बहुत अच्छा रहा समरी। अब हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पूछेंगे। कौन पूछेगा सबसे पहले क्वेश्चन? सबसे पहले तो भुवन मित्तल ने सबसे पहले किया था और अभी संजय सिंह का के 3 मोबाइल फोन बिजी है। संजय का भी है, फिर प्रभा भी है और भूवी भी है। मैंने तीनों को देख लिया है। हाँ जी, अच्छा ओके ओके। प्रणाम चलो। स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। ओके तो चलो, प्रणाम तो- स्वामी जी। मेरा पहला सवाल है लेटर 120 में से। हाँ। What is the correct method of practicing जपम? See, when you were initiated, आपकी जब दीक्षा हुई थी हाँ तब जी, आपको एक मेथड बताई गई होगी और एक कुछ ना कुछ छोटी जी। सी बुकलेट या कुछ पेजेस देते हैं, दिया होगा आपको। उसमें वो तो सारी है नहीं। हाँ हाँ बस जी। उसमें दिया होगा इतने बजे नहीं है उठो। नहीं मेरे पास। हाँ है, वो है ना? नहीं है? नहीं, वो गुम गया मेरा तो। ओ एनीवे ऐसा है कि वैसे इटर्नल कंपेनियन है, उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें हाँ डिटेल्स जी, दिए गए स्वामी ब्रह्मानंद जी ने। और ऐसा हाँ जी, है कि ये करेक्ट मेथड जो है अभी जो आपने लिखी है ना, जो लिख के भेजा ना तुमने लेटर के साथ, तुमने जो क्वेश्चन पूछा उसके साथ में तुमने डिटेल्स में लिखा है ना? हाँ जी, थोड़ा सा लिखा है जो मुझे हाँ याद है वो वो मैंने लिखा। दैट इज अ करेक्ट मेथड। ठीक है जी। और उसके साथ में इटर्नल कंपेनियन पढ़ लेना। हाँ जी, इज दैट ओके? हाँ जी स्वामी जी। और उसके बाद में फिर मेरे से अपने पर्सनली मेरे को तुम एक ईमेल भेज देना 4-5 दिन के बाद में पढ़ के, इज देयर एनी डिफिकल्टी, हम उसको स्पेसिफिक डिफिकल्टी होगी तो फिर से दे। हाँ जी, इज दैट ओके? यस महाराज जी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी। So second question, because we live in this world, how do we keep immune from the risk of engaging in worldly talk right after meditation? I heard that moving quickly from deep godly thoughts to worldly thoughts is not recommended. It can harm us. And we should not even go to even doing strenuous exercises such as running right after meditation. हाँ, तो मेडिटेशन के बाद में एटलीस्ट 15 मिनट्स टाइम आपको इलैप्स करना चाहिए कोई एक्टिविटी करने के पहले। यानी आप क्वाइटली हाँ जी। बैठ जाइए या कुछ किताब पढ़िए, इटर्नल अच्छा जी। कंपेनियन पढ़ लिया या गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, उस ट्रांसलेशन उसका, इस प्रकार का 10-15 मिनट तक पढ़ लीजिए, क्वाइटली बैठिए। Don't do हाँ anything जी। for 15 minutes after meditation. ये reading is very important.
उसके ठीक बाद है में जी। आप कर सकते हो। दैट इज 10-15 मिनट्स टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कीप योर टाइम माइंड इन गॉड by reading scriptures, eternal companion, Gita, etc. Okay. हाँ जी। Third question. The third question, how do we extend the momentary joy rarely perceived during meditation? Should we, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और questions थे कि हाँ. should we stop being a witness and judge of how our meditation is going? And then should we stop seeking joy in our ishta and seek and do bhakti alone? Because bhakti ही सार है, जैसे तो इस तरीके से question था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो पहला तुम्हारा सबसे पहले क्या क्वेश्चन था? अपना ये जो जॉय मिलता है उसको कैसे बनाए रखें, इज इट? हाँ जी। तो उसका यह है रिपीटेड अभ्यास के द्वारा होगा। एवरी डे रेगुलरली रिपीटेड प्रैक्टिस करते करते जो जॉय तुमको प्राप्त होता है मेडिटेशन में, किसी दिन मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूअस मेहनत करते करते उसके बाद में वो तुमको रोज डेली मिलने लग जाएगा जॉय। सो इट विल बिकम परमानेंट। ओके। हाँ जी। सेकंड इज Second, के हाँ, वो वही मैंने बताया, इससे डिस्कस हो गया है कि ग्रेजुअली इट विल बिकम ऑटोमेटिक एंड मोर परमानेंट। हाँ जी। तो अच्छा। हमें क्या एक हायर माइंड को नो लेकर नो के नो लोअर माइंड को डोंट विटनेस करना है नो कि नो नो कैसे नो चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कर रहे हो वैसा करते चले जाओ। अच्छा जी। डोंट बॉदर अबाउट वो, ऑटोमेटिकली तुमको तुम्हारा नेचर जो है वो जॉयफुल हो जाएगा। प्रतिदिन हाँ कर जी। रहे हो ना, रोज मेडिटेशन में जॉय मिल रहा है, एक दिन मिला एक दिन नहीं मिला, ग्रेजुअली करते करते रोज मिलने लग जाएगा और ऑटोमेटिकली इट विल बिकम परमानेंट। हाँ So जी। first process is don't worry. First is don't worry about seeing or maybe witness करने की बात नहीं है, करते चले जाओ first। हाँ जी। अच्छा। Second is, it is not all, it is always better not to seek joy. जॉय की कोशिश माने कोशिश करो ना, भक्ति की प्रयत्न करो। यानी यह है कि भगवान को प्रेम करना प्रयत्न करो, जॉय की प्रैक्टिस नहीं करो। You have to love God, that is bhakti. There is a difference हाँ जी। between joy and bhakti. हाँ जी। That is the point. तो भगवान से प्रेम करो, भक्ति करो, अपनी साधना करते जाओ और don't try to judge how well you have meditated। ये सब जो है ये distractions हो जाते हैं। You know, when you start finding out thinking कि मैं आज meditation मेरा अच्छा हुआ या नहीं, वो तो automatically तुमको पता चल जाएगा। जो जैसा करना है, जैसा बताया गया है, उसको रेगुलरली करते चले जाओ। That is the point I am emphasizing. हाँ जी। तो हाँ, don't try to judge। और विटनेस तो है कि ध्यान के पहले थोड़ा सा अपने मन को विटनेस करना, ठीक है और जी। बट डोंट ट्राई टू असेस। पॉइंट इज असेस नहीं कि मेरा इतना मैंने प्रगति की है, आज मेरा ध्यान अच्छा हुआ। वो तो तुमको अपने ही पता चल जाएगा कि आज ध्यान अच्छा हुआ, आज अच्छा ध्यान नहीं हुआ, आज मेरे को जॉय मिला। डोंट वरी अबाउट दीज इफेक्ट्स। गो ऑन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली and you will find in years your nature changes. You are automatically peaceful. Every time, every day you do meditation, you will get joy. But उसके लिए स्पेसिफिकली जॉय के लिए प्रयत्न नहीं करो। जैसा गुरु ने कहा है उसी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्रैक्टिस करे जाओ। हाँ जी। You got my point? हाँ जी। Oh. यस आंट। तीनों क्वेश्चंस हो गए? हो गए जी। हाँ जी। सुबीर मजूमदार। सुबीर मजूमदार है? हाँ, प्रणाम महाराज। अच्छा भाई। हाँ महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन हाँ। ऑन पेज 208 123 लेटर नंबर था।
Swami Turiyananda says, without renunciation, neither knowledge nor devotion can arise in the mind. तो मेरा समझना है महाराज जी, that the devotion leads to renunciation and not the other way around. And such renunciation happens automatically as we proceed on the path of bhakti. We see this in the lives of bhakti saints like Tukaram also. So please clarify if my understanding is right. ओके, तुमने कहा है कि रिनंसिएशन, तुरानंद जी रिनंसिएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि देयर इज ए टेंडेंसी अपॉन डिवोटीज कि भाई हम भक्ति करें तो अब रिनंसिएशन अपने आप हो जाएगा, और सारा जीवन रिनंसिएशन नहीं होता। तुकाराम जैसे कितने लोग हैं भाई? जी जी, थियोरेटिकली जो तुम कहते हो, इवन प्रैक्टिकली इंटेंस रिनंसिएशन, इंटेंस भक्ति से रिनंसिएशन अपने आप हो जाता है, सब कुछ छूट जाता है जी। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर पाते हैं? जी, दिस प्रैक्टिकल पार्ट हैज टू बी अंडरस्टूड। थियोरेटिकली तो बिल्कुल करेक्ट है तुमने जो कहा जी महाराज। इसलिए तुरानंद जी रिनंसिएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे। रिनंसिएशन को अपने जीवन में डालो, भक्ति अपने आप हो जाएगी, ये बात भी है। So renunciation has to be practiced willfully. That is what you are saying. yes. हाँ, ठीक है। और भक्ति तो है, ठीक है, रिनंसिएशन जो है केयरफुली विलफुली उसको करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है महाराज। Second question महाराज जी, what is the difference between जीवन मुक्ता and ईश्वर कोटि? देखो ईश्वर कोटि जो है वो दे आर बॉर्न मुक्त। अच्छा, वो उसको साधना करके मुक्त होना नहीं पड़ता। अच्छा, मुक्ति उन लोगों के स्वभाव से है जी। हाँ, और ईश्वर को जीवन मुक्त जो है उसको तो वो सामान्य साधक है, साधक साधना करके संघर्ष करके और मुक्त होना पड़ता है। I see. हाँ, तो ये 6 ईश्वर कोटि जो थे ठाकुर के डिसाइपल्स, तो ये सारे ईश्वर कोटि जन्म से ही मुक्त थे। स्वामी जी उन्होंने थोड़ा ठाकुर ने साधना करवाई इसलिए करवा लिया लोक शिक्षा के लिए, लेकिन स्वरूपतः वह मुक्त ही थे जी। जैसे कि स्वामी जी के जीवन में तो हम ये काफी देखते एग्जाम्पल्स बचपन से। बाकियों में भी था महाराज जी ऐसे ही बचपन से। ब्रह्मानंद जी को देखो, बचपन का तो मालूम नहीं ना ज्यादा। जी, स्वामी जी तो फिर स्वामी जी थे तो इसलिए, विवेकानंद थे, सारे विश्व वंदित थे तो इसलिए उनके जीवनी के बारे में हम ज्यादा जानते हैं। लेकिन जितने बाकी जो ईश्वर कोटि थे उनके बचपन के बारे में तो हम अधिक नहीं जानते ना। जी जी, दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो लोग तो उनके वो दृष्टि में हमारे नहीं आए। और ठाकुर का बचपन जानते हैं, डायरेक्ट डिसाइपल्स का बचपन हम नहीं जानते, केवल स्वामी जी का बचपन जानते। जी जी, तो वो होंगे रहे होंगे ये कैसा कहना मुश्किल। हाँ, लेकिन ठाकुर ने कहा है तो एब्सोल्युटली ठीक ही होगा। लेकिन बाकी जितने हैं जीवन मुक्त, तो वो कई वर्ष जन्मों की साधना के बाद धीरे धीरे करके वो जीवन मुक्त होते हैं। जीवन मुक्त होते हैं। ओके महाराज। थर्ड क्वेश्चन महाराज, ऑन पेज 212 लेटर 125 उसमें स्वामी तुरानंद कहते हैं, neither this person nor that person is the cause of anything. At the root of all is God. What does he mean? And further, हाँ, मैं आगे थोड़ा सा पढ़ लूं फिर आप बताएं। further next है तुम्हारे questions। हाँ, further he goes on to say, your lover is in yourself and your enemy too is within you. But this he probably means the mind, कि आपका दुश्मन भी आपके अंदर है और आपका लवर भी अंदर है, तो ये शायद वो माइंड की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। हाँ जी महाराज, अब बताएं जरा। तो पहला क्वेश्चन जो है कि we give credit or discredit to person behind that is God is doing, यानी क्या है तुम्हारा? फिर से पढ़ो तो क्वेश्चन पहले का। हाँ, वो कहते हैं कि neither the person nor this person nor that person is the cause of anything. At the root of all is God. हाँ, तो वो ये है
कि हम क्रेडिट और डिस्क्रेडिट आदमी को देते हैं कि अमुक व्यक्ति के कारण मैं हुआ, सच पूछा जाए भगवान सब कर रहे हैं। दैट इज ओके, हमें जो- वी गिव ए क्रेडिट टू ए पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर इवेंट। अरे ये मैंने ये किताब जो है वो मुझे मेरे पिताजी को किसी उनके मित्र ने दी थी, उसको पढ़ के मैं स्वामी जी की तरफ आ गया। जी तो वो उसने क्या मेरे पिताजी को जो दिया था मेरे उनके पिताजी के मित्र ने, तो वो हाँ। उसको मैंने क्रेडिट दे दी। जी जी तो यहाँ कहने का ये चाहते हैं कि वो क्रेडिट हम देते हैं, लेकिन सब कुछ जो है वो भगवान कर। जी इज दैट ओके? फिर से पढ़ हाँ के देखो। हाँ Okay. बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। अच्छा, द सेकेंड पॉइंट इज अच्छा बुरा जो है ना, जी जी हाँ तो ये है कि वो स्वामी वे में बहुत संस्कृत में ये प्रसिद्ध है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये है ना, जी महाराज। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। ये तो डेफिनेट है, जो तुमने जो पढ़ के बताया, ये जी मन के ही कारण हम बंधन में पड़ रहे हैं और मन के ही कारण हम मुक्त हो। तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। हाँ, तो इसलिए वो लवर इज इन योरसेल्फ एंड एनिमी इज विद इन यू, ये जो स्टेटमेंट है इसका हाँ, मतलब यानी वो मन ही है, मन ही है। मन एवं बंधन का कारण, यानी मन ही तुम्हारा शत्रु है और मन ही तुम्हारा मित्र है। मन जो गीता, एवं मनुष्याणाम कारणम में बंध भी है। मोक्षयोः। हाँ ये मन गीता, ही तुम्हारे बंधन का कारण है और मन ही हाँ। मुक्त का कारण है। मन ही तुम्हारा मित्र हो गया और मन ही तुम्हारा शत्रु हो गया। जी जब तुम्हारी वासना इच्छाएं हो गई तो मन ही तुम्हारा शत्रु। जी 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 समझ गया Okay. महाराज। दिस इज व्हाट गीता, और गीता में भी है ना ये। और यही तो उद्धरेण गीता की उद्धरेण तो आत्मना बात है। हाँ से हाँ आत्मानम हाँ, बुद्धरेत आत्मा न आत्मा, आत्मा अवसादयेत्। बिल्कुल। थैंक यू महाराज, दैट्स ऑल महाराज। महाराज जी एक अरे सवाल। आप आ जाइए ना हाँ, दिलीप भाई, अभी अभी क्या कर रहे हो, बोलो। हाँ महाराज जी, अभी प्रणाम महाराज जी। नमस्ते, बोलो क्या पूछ रहे हो। उसके पहले हाँ, सप्लीमेंट्री कुछ पहले मैं पूछ रहे ये हो ना? पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने मजूमदार साहब सुबीर जी के केस में बताया कि किसी ने आपको ज्ञान दिया या उंगली बताई है कि इधर जाना है, मेरे पिताजी के दोस्त ने किताब दी थी उससे ये हुआ, तो क्या हमने ये क्रेडिट देना चाहिए या नहीं, या ये बोलना चाहिए या नहीं? तो जैसे दे दो आप- ना, कोई बात नहीं, जो जरूर, क्या क्रेडिट देने में क्या नुकसान है। नहीं, आपने कहा ना कि अल्टीमेटली ये तो सब ईश्वर ने ही करवाया। अल्टीमेटली तो सब भगवान करता है। हाँ, वो बराबर, पर तो ये मैंने कहा कैसे? ना, अल्टीमेटली नहीं, बीच बीच में बहुत सारी चीजें हैं, वो सब दे दो ना क्रेडिट। ओके जी, अरे भाई, थोड़ा ब्रह्मेशानंद जी को भी क्रेडिट मिल जाए ना, और जब तो लोग भगवान ही सब कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाए। बराबर जी महाराज, थोड़ी क्रेडिट जी। अच्छा, आइए दूसरा क्वेश्चन, आ जाइए आप। महाराज जी, हाँ, मेरा पहला प्रश्न है, व्हाट इज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड प्योर डिवोशन, दोनों का डिफरेंस क्या है? डिसिप्लिन और दूसरा प्योर डिवोशन हाँ। फर्स्ट पेज पे ही है। अच्छा देखो, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हुआ तपस्या करना, स्वाध्याय करना, नियम हाँ। पालन करना, सुबह उठना, हाँ, स्नान करना। अब ये भक्ति नहीं भी हो तो भी कर रहे हैं, ये जी। हमको करना है। हाँ। तो ये प्रारंभिक चीजें हैं, ये सब है। उसके बाद ध्यान भी है, जप भी है, प्रार्थना भी है, ये सब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में आता है। लेकिन ये डिसिप्लिन के पीछे हमारे मन में भक्ति भी नहीं हो, भगवान को हमारे प्रेम नहीं होवे। अरे भाई, अमुक व्यक्ति जो है वो हाँ। उन्हें बड़ा अच्छा ध्यान जप करके वो तो अच्छा एकाग्रता हो गई है उसकी, उसका जी। चेहरा कितना अच्छा हो गया है, वो तो मैं भी करूं। जी। हमने कहीं किसी दूसरे कारण से, किसी कारण से, या गुरु ने बता दिया, या जूम में हमें पता चला, मीटिंग में पता चला कि हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, और हम ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन करने लगे। लेकिन इसके पीछे भक्ति या डिवोशन नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं। तो डिवोशन का अर्थ है भगवान से प्रेम करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का प्रेम करने में अच्छा लगना, हाँ हाँ ये हुआ जी। डिवोशन।
और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गई, बहुत सारी बातें जो अभी हमने। जी महाराज। हाँ, now my next question on letter number 120. Those who are enthusiastic and active, only they get help from God and not lazy person. Please explain the meaning. इसका मीनिंग क्या होगा महाराज? अरे अरे, तुम तो ध्यानवान तो करते नहीं हो, बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, सुबह टाइम पे उठते नहीं हो, ये लेजी हो गया कि नहीं हुआ? हम तो सुबह उठते हैं और उठ के फिर सो जाते हैं, इसको बोलते हैं लेजी। ये जी। लेजी यानी जो आलसी है, कम मन से, यानी चोरी करना, जिसे कहते हैं ना, ये काम चोर जो है उसको लेजी कहते हैं। जी। तो ध्यान जब तो कुछ करेंगे, भगवान सब करेंगे, भगवान की इच्छा से सब होगा, है ना? जी। कहते हैं भगवान की इच्छा से सब होने वाला है, खुद कुछ नहीं करेंगे, ये हुआ लेजी। ओके, राइट। जी जी। लेकिन अगर ठीक ठीक साधना करोगे तो कहते हैं एक कदम अच्छी तरह भगवान की तरफ करोगे तो भगवान 10 कदम आएंगे। करो तो सही भाई, करेंगे नहीं और कहेंगे कि भगवान सब करेंगे, इसको बोलते हैं लेजी। ओके, राइट। अच्छा, हाँ जी महाराज जी, थर्ड क्वेश्चन इसी लेटर में है। डोंट पे टू मच अटेंशन टू टाइम, इट क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन। यस, हाँ, ये मेडिटेशन करने के लिए कहा गया है क्या? नीचे हाँ, क्या हाँ, क्या है कि वो कितना घंटे, मैं आधा घंटा रोज ध्यान करूंगा। अब वो 25 मिनट 20 मिनट के बाद देखी घड़ी कितना हुआ टाइम जी, है? राइट। हाँ हाँ हाँ। तो ये टाइम को इतना महत्व मत दो बाबा। अरे अभी तो 5 मिनट शुरू में भले आपने किया, आपको बैठने की आदत नहीं है, तो 15 मिनट का बैठने की आदत बना ली। जी अच्छा हो गया, आप आधे घंटे की आदत बना ली। हाँ। अब थोड़े बाद आधे घंटे की हैबिट हो गई तो उसके बाद में फिर अब ध्यान मत, टाइम मत रखो, नहीं तो जी। आधा टाइम तो तुम्हारा टाइम में चला जाएगा। ध्यान भगवान में ध्यान नहीं होगा, वो टाइम में ही ध्यान होगा। एक टाइम टेबल बना रहे हैं। तो आजकल जो है, एक मैंने कहीं पेपर में आया है, उसने कहा, किसी ने भेजा था मेरे पास, एक कुछ 8-10 वर्ष के बच्चे ने भी एक टाइम टेबल बनाया, इतनी बजे उठूंगा, स्नान करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ध्यान करूंगा। ये शुरू में हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम टेबल ही बनाते रहे, टाइम टेबल ही बना रहे हैं और काम कुछ नहीं। So that is very important. Don't give too much importance to time. जी उसके बदले काम में लगे रहो, और काम अगर ध्यान अच्छा गहरा हुआ, और अगर आपको 1 घंटे के बदले 2 घंटे गहरे ध्यान में बैठे तो क्या बुरा? नहीं, बहुत बढ़िया जी। ये बात है। हाँ, शुरू में थोड़ी जी। नियम की आवश्यकता वही। हो सकती है, उसके बाद में फिर डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम। चलो जी महाराज, मैं पूछूं कुछ Yes. थोड़ा? हाँ, बोलो पूछो। हाँ, हाँ महाराज, मैं ये कह रही थी कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको तो टाइम के हिसाब से ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके पास टाइम अरे कम ये होता है। बच्चों की बात नहीं हो रही है, साधक की बात है। अच्छा, ठीक है ये महाराज। बच्चों के लिए तो टाइम टेबल होना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो अरे लिमिटेड ही रहते हैं। हम भी जब स्टूडेंट थे तो टाइम टेबल बनाते थे तो। ठीक है महाराज। Yes, Maharaj ji, letter number 123. They have both dualists and qualified non-dualists admit that the world is full of misery, but they say that it can be joyful by the grace of God. Yes, Maharaj ji, my question is how and why the world becomes joyful by the grace of God. Further, the same person who says the world is full of miseries now says the world is joyful. ये कैसे है? तुम्हारा प्रश्न है क्या भगवान की कृपा से आनंददायक हो जाता है, यही इसका उत्तर है। नहीं, यानी उस व्यक्ति आधे घंटे में आना। ऐसा है कि भूखा हो तो खाने से सुख मिलेगा, जी, पेट भरा हो तो सुख खाने से पेट नहीं मिलेगा। हाँ, मिठाई हो तो मीठी चीज से सुख मिठाई से मिठास से सुख मिलेगा,
उसी प्रकार भगवान की कृपा से सुख मिलेगा, भगवान की कृपा से दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम पढ़ो तो फिर से तुम्हारा क्वेश्चन। Yes. Both dualists and qualified non-dualists admit that the world is full of misery, but they say it shall be joyful by the grace of God. Now my question is how and why the world becomes joyful by the grace of God. Further, the same person who says the world is full of miseries now says the world is joyful. यानी महाराज जी मेरा सवाल ये है कि ये joyful का मीनिंग क्या संसारी सुख या ईश्वरी सुख? नहीं, कृपा कृपा से होता है। जैसे अब दृष्टांत ले लो, जी दृष्टांत ले लो कि अगर एक बच्चा, हाँ उसके पास उसकी माँ नहीं है, जी उसको खाने को भी दो तो भी उसको सुख नहीं होता। हाँ हाँ अगर उसको माँ मिल जावे ना, तो माँ correct. की गोद में बैठ जाएगा, और खाने को न भी मिलेगा तो सुखी हो। हाँ हाँ एक बड़ी मजेदार कहानी है। एक जी। है वो प्रेमचंद जी ने लिखी है हाँ कि एक बच्चा जा रहा है, तो बच्चा जी। माँ के साथ जा रहा है, एक मेला है, मेला में। हाँ। तो मेले में खिलौने देखी, माँ मेरे को खिलौना दे दे। माँ ने कहा नहीं, चलो आगे चलो। दूसरा कहीं खेल हो रहा था, वहां खड़ा होके कि मैं देखूंगा, माँ कहा नहीं, चलो थोड़ा सा देख के चला गया। ऐसा करा 4-5 जगह उसने बोला, वरना ये हुआ जो भी हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि माँ से बिछुड़ गया, रोने लग गया। एक आदमी आया, उसने गोद में उठाया, तो उसको बोला खिलौना चाहिए, नहीं चाहिए। अब पहले उसी खिलौना के लिए रो रहा था माँ के। उसको लड्डू ला के दिया, पहले लड्डू चाहता था माँ से, नहीं माने, लड्डू दे रहा था, नहीं चाहिए मेरे को माँ चाहिए। समझ में आई ना बात बाबा दिलीप भाई? बहुत बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, तो ये समझ अभी तक संसार में हमें सुख दुख बना रहता है। एक बार भगवत कृपा रूपी माँ मिल जावे तो फिर ये संसार के सुख दुख से हम परे चले। जी तो इसको फिर से पढ़ो, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया? ठीक है, बिल्कुल हो गया महाराज जी। यस। अच्छा नाउ नेक्स्ट। हाँ। Oh Krishna, even though I be born among insects, birds, beasts, reptiles, demons, ghosts, or whatsoever, still through your grace, may I have unstretchable, unwavering devotion to you. महाराज जी मैं जब है कि मैं भी कहीं पे मेरा जन्म हुए, कीट मकोड़े भी हुए प्रभु, लेकिन ऐसा करो कि सदा तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति हो। जी हाँ, अब प्रश्न क्या है तुम्हारा? महाराज जी, माय क्वेश्चन इज हियर कि जो कीड़े मकोड़े जो भी उनने कहा है कि बर्ड्स बने, बीस्ट बने, रेप्टाइल्स बने तो भी चलेगा, लेकिन ये जो हम समझते हैं वो ये है कि मनुष्य में और इन लोगों में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो है विवेक का। तो विवेक कहाँ से मिलेगा? और विवेक नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका ये कहना है कि प्रभु मुझे कुत्ता भी बनाओ, लेकिन प्रभु ऐसा कुत्ता बनाओ कि आपके प्रति मेरी भक्ति होवे। यानी कुत्ता जो है अपने मालिक के प्रति भक्त होता है, तो मालिक का भक्त होता है ना कुत्ता। दिलीप भाई बोलो ना। यस यस सर, यस यस महाराज। कुत्ते में भक्ति होती है। अब बिल्ली भी जो है वो मालिक को पहचानती है, आके बिस्तर में, मालिक के बिस्तर पे, गोद में, बिस्तर में सो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि प्रभु मुझे कुत्ता बिल्ली बनाओ, जो भी बनाओ, लेकिन आपका कुत्ता बिल्ली बनाओ मुझे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति मुझे होना चाहिए। यानी जहाँ कहीं भी मेरा जन्म होवे, कुत्ता हूँ, बिल्ली हूँ, सांप हूँ, लेकिन प्रभु तुम्हारे प्रति भक्ति होवे। परम भक्ति से। हुआ क्या नहीं हुआ? ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ? दिमाग में आ गया। हाँ। नाउ नेक्स्ट। उसके साथ और भी कुछ क्वेश्चन जुड़े हुए हैं क्या? नहीं महाराज जी, बस यही है। हाँ, उसके साथ मैंने लिखा है। फर्दर द स्वामी जी सेज in the letter, still it is better to be born as a companion of the Lord for the good of mankind than to attain nirvana. My question is,
how the choice to reborn as a companion, when in above sentence it seems they have no choice to reborn in a human being. It is in the hands of the God. नहीं, ऐसा है कि देखो, अगर मुझे चॉइस मिले, Okay. सब कुछ भगवान के हाथ में है। क्या होगा, मेरा मुक्त होंगे या मेरे को पुनः जन्म होगा, ये सब भगवान के हाथ। जी हाँ, वो वही। अगर मुझे चॉइस मिले, और तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी दो चॉइस है। जी, एक तो तुमको निर्माण कर लिया, मुक्त हो जाओ, फिर उसके बाद जन्म लेना नहीं पड़ेगा। भगवान के साथ। और जी। दूसरा है यह कि तुम पुनः जन्म ले लो, भगवान के साथ भक्त हो के भगवान की सेवा करो, भगवान के साथ रहो, हाँ, लोक कल्याण करो। हाँ, तो तुरानंद जी कहते हैं कि ये दूसरी चॉइस जो है बेटर, हाँ, भले पुनः जन्म लेना पड़े, लेकिन भगवान के भक्त होकर जन्म, और फिर हम उसके साथ में भगवान जो लीला कर रहे हैं उसमें हम लीला में भाग ले हुए लोगों का कल्याण करें। हाँ महाराज जी, अब ये इसी सवाल के अंदर ये दोनों चीज आई है। तो पहले सेंटेंस जो था उसके अंदर मुझे बर्ड्स बनाओ, बीस्ट बनाओ, रेप्टाइल्स बनाओ, तो वो कैसे लीला करेंगे इसमें और उसमें? आपने दोनों को ज्वाइन करा या अलग अलग बता था? ये दोनों चीज नहीं, अलग ऐसा है, है और कि इसके अंदर लेटर में एक साथ लिखी गई। लेटर हाँ, में क्या किया, लेटर में दोनों बताए गए हैं ना। लेटर में तो दोनों बताए गए हैं ना, दो चॉइस दी गई है ना। हाँ, दो लक्ष्य हैं, भगवान का साथी बन के रहना या या फिर निर्वाण मुक्ति निर्वाण। प्राप्त करना। ये क्लियरली दोनों चीजें लिखी हुई है ना उसमें। उसमें से उन्होंने कहा पहला जो है भगवान के साथी बन के जगत का कल्याण करना बेटर है। ये सवाल है, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है, जरा सा ठीक करो तो तुम्हारा मोबाइल फोन। महाराज ये तो भक्त और ज्ञानी का है ना, अलग अलग। हाँ नहीं, जो भी हो, तुरानंद जी कहते हैं कि इस प्रकार का भक्त होना अच्छा है। हाँ हाँ, हाँ। अरे आवाज नहीं आ रही है संजय, देखो तो। इंटरनेट चला गया। आ गया। हाँ आ गया, बोलो फिर से बोलो। अब प्रश्न क्या है तुम्हारा? यस महाराज जी, ये एक सवाल के अंदर दो सवाल थे। पहला सवाल मेरा ये है कि माय क्वेश्चन इज हाउ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बीस्ट्स, रेप्टाइल्स हैव अनशेकेबल एंड अनवेवरिंग डिवोशन टू कृष्ण। ये चीज आपने बता दी, क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट इसी के अंदर सवाल है, फर्दर द स्वामी जी इन द लेटर, still it is better to be born as a companion of the Lord for the good of mankind than to attain nirvana. My question is how the choice to reborn as a companion, when in the above sentence it seems they have no choice to reborn in human being, it is in the hands of the God. हाँ तो ये तो सुनो, हाँ, हमारा पुनः जन्म में हम मुक्त होंगे या कैसा जन्म होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। यस, माँ के हमारे हाथ में नहीं है कि हमको क्या खाने को मिलेगा, माँ के हाथ में है। हाँ, अब माँ को ये तो कह सकते हैं कि मुझे लड्डू दो, खीर मत दो। जी जी जी, दोनों बढ़िया है, लड्डू भी बढ़िया है, खीर भी बढ़िया है, निर्माण भी बढ़िया है, और पुनर्जन्म कह के भगवान की सेवा करना ये भी बढ़िया है। हमने कहा कि नहीं, खीर दो, माँ लड्डू मत दो। दोनों में से एक चॉइस हमने बता दी। जी, हुआ कि नहीं हुआ? बराबर महाराज जी, आ गए, हो गया, क्लियर हो गया। अब महाराज जी ये नेक्स्ट सवाल है महाराज जी, संवेद, it is written scriptures and the science of an illumined soul. At one place scriptures are shown as Swa Samvedya, and at the same time in Para Samvedya. It is written that the knowledge which comes from studying the scriptures and from other sources. Please explain the I feel there is an ambiguity.
ये पूरा ambiguity कुछ नहीं, ये देखो 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 पूरा देखो पैराग्राफ देखो, जी अच्छा देखो देखो देखो, हाँ अच्छा एक आदमी आया और कहा जी कि दिलीप भाई वो जी जो बूंदी का लड्डू है वो बहुत बढ़िया है, मैंने हाँ खाया है, वो बड़ा होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत बढ़िया होता है, और उसने सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया लड्डू का, तुमको यस दिखा भी दिया लड्डू, ये देखो ये लड्डू है। हाँ तो उसको लड्डू के बारे में, उसकी मिठाई के बारे में सब आपको मालूम पड़ गया, मीठापन के बारे में मालूम पड़ गया, हाँ लेकिन क्या मिठाई चखी चखी आपने? नहीं नहीं हाँ, अच्छा जब आप लड्डू खा लोगे उसके बाद में फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मीठा इतना होता है, इतना बड़ा होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, हमने तो टेस्ट कर लिया उसको। यस जी तो महाराज जी खैर ये टेस्ट किया है, इसको कहते हैं ससंवेद्य, हाँ यानी अनुभूति भगवान का भजन करके, साधना करके आनंद पाना, जी ये हुआ ससंवेद्य। यस और यहाँ जूम की मीटिंग में वही सब बातें करना, ये गीता हो गया पढ़ना, भागवत परसंवेद्य। पढ़ना और कहना कि हाँ भगवत पढ़ने से ये होता है, इतने प्रकार की भक्ति होती है, ये प्राप्ति होती है, ये सब की बात करना, ये हुआ ये परसंवेद्य। जी ओके यानी ब्रह्मेशानंद ने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया भगवत भक्ति के ऊपर, और भगवान का भक्ति करने से कितना आनंद मिलता है ये सब बता दिया, ये हुआ परसंवेद्य। परसंवेद्य जी लेकिन ओ खुद उसका अनुभव करना, इसको कहते हैं स्वसंवेद्य। जी महाराज जी 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 महाराज जी बहुत महाराज जी कथामृत में है ना, दूध को बारे में सुनना, हाँ देखना और हाँ। दूध पीना, तीनों अलग अलग। और एक हाँ, है, और एक स्टेज है हाँ, दूध दूध पी के तो ताकत- हिष्ट पुष्ट होना। दूध पी के मोटा तगड़ा होना, हाँ वो और एक हाँ स्टेज है। और वो दूध के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन किताब में पढ़ लेना। हाँ ये दोनों गाय का दूध जो है उसमें इतना प्रोटीन होता है, इतना इतना फैट होता है, ये सब लाल पीला होता है, ये होता है, ये होता है, ये हुआ परसंवेद्य। जी ठीक है, ये महाराज जी बहुत क्लियर हो गया वो जैसे ये मिठाई की बात हो जाती है सब समझ में आ जाता है। हाँ बस और याद भी रहेगा काफी समय तक। अच्छा आगे चलो। यस महाराज जी नंबर 7 124 पे ही है। इन द योग वर्सेस रामायण निर्वाण 7 stages has been described for the spiritual aspirant according to his evolution. Please explain these 7 stages दी है महाराज जी, यदि आप कहें तो ये पूरा मैं बता देता हूँ अभी। वो होता है कि बहुत ये हाई चीज है ये, लेकिन फिर भी उसको हाँ। थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये वो योग वाशिष्ठ में है, तुरानंद जी ने उसका डिटेल नहीं किया है, लेकिन उसके 7 लेवल ये हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। जी जी पहली स्टेज है, उसको कहते हैं शुभेच्छा। ये हम लोग सब बैठे हैं, हम में शुभ इच्छा हुई कि चलो भगवान की तरफ जाना चाहिए, जी ये पहला है हमारे जीवन में आता है, हम सब समझते हैं, समझे? शुभेच्छा, हाँ। शुभ इच्छा। अच्छा, जी जी महाराज सेकेंड इज विचार करना जी है, शास्त्र के पास जाना, ये जूम मीटिंग अटेंड करना, संन्यास का बारे सज्जन के बारे में, शास्त्र सज्जन वैराग्य अभ्यास विचार करना, ये जी। सेकंड लेवल हुई। पहली तो हाँ। हुई केवल इच्छा हुई, हाँ लेकिन वो जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करते कि किताब पढ़ते नहीं है, लेकिन इच्छा है कि चलो भाई भगवान की तरफ जाना चाहिए, जी जी केवल इच्छा हुई। लेकिन हाँ। सेकंड लेवल में तुमने शुरू कर दिया, पढ़ने लग गया, शास्त्र पढ़ने लग गए, लोगों से जूम मीटिंग ज्वाइन करते हो, बात करते हाँ हो ना। बराबर थर्ड लेवल है तनुमानसा, यानी दोनों विषयों में अनासक्ति, यानी संसार के विषयों में जो है विषय अनासक्ति हुई, आसक्ति कम हो गई। अब जो है पहले 5 साल पहले जितना हमको संसार का अट्रैक्शन था, वो अब अट्रैक्शन नहीं रहा, नहीं रहा बिल्कुल है ना। ये हुआ जी। मन जो है वो तनु हो गया, तनुमानसा, मन की जो बात है वो कम हो गई। जी हो गए यस महाराज आत्मा जी में आत्मा, अच्छा हो गया। यस चौथा है
भगवान में मन लगने लग गया, सत्वापत्ति कहते हैं उसको, सत्वापत्ति कहते हैं। तुम चाहो तो लिखो, नहीं तो मत हाँ लिखो। लिखिए, हाँ लिख रहा हूँ मैं। सत्वापत्ति जी जी महाराज यानी भगवान में मन लगने लग गया। जी। हाँ, एकाग्रता होने लग गई। पांचवा है असंशक्ति। यहाँ पांचवा, छठा, हाँ। सातवां जो है ना, ये कठिन है। ये 5 तक तो, 4 तक तो समझ में हाँ। आ गई ना दिलीप भाई। हाँ ये तो आ गए जी जी महाराज जी, क्लियर है। उसके बाद जो 3, 5 बाकी 3 जो है ना, बड़ी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोगों को अनुभव नहीं होता। असंशक्ति यानी आत्म तत्व का अधिक ज्ञान होने लग जाता है, मन में। संसार के तरफ मन जाता ही नहीं। ठीक है। जी जी। छठा पदार्थ भावनी यानी हमारे भीतर हृदय में आत्म तत्व का, भगवान का ध्यान होने लग गया, आत्मा में मन विलीन होने लग गया। दूसरे भी अब हमारा ध्यान बैठा डूबा रहता है कि बड़ी मुश्किल से लोग हमें उठाते हैं, हाँ बहुत उच्च कोटि के साथ तपस लेवल। ये हम केवल अंदर समझ, थोड़ा बुद्धि से समझ सकते हैं और कुछ नहीं। जी। और सातवां है हाईएस्ट, जी। तुर्यगा। तुर्यगा हाँ तो जी। तुर्यगा तुर्यगा यानी पूर्ण प्रतिष्ठा। अब वो 21 दिन में शरीर छूट। ओके। ओके। यस महाराज जी एक प्रश्न था। जब हाँ। ठाकुर ऐसे समाधि में चले जाते थे और हाँ। उनको फिर कान में मंत्र बोल के वापस लाना पड़ता था, हृदय करते थे, हृदय राम जी करते थे, हाँ। तो वो क्या इस स्टेज में आता है? ऐसा है कि ठाकुर जो है वो पदार्थ भावनी और तुर्यगा के लेवल पे ही थे। जी जी जी। अधिक से अधिक असंशक्ति तक आते थे। हाँ, क्योंकि वही बनात भावनी में ही वो कान नहीं में। नहीं, पदार्थ भावनी ही उनका समझ लीजिए कि है। अच्छा। वो तो ठाकुर ने माँ जगदम्बा में रखा था, नहीं तो ठाकुर की तो ऐसी स्थिति थी कि वो 21 दिन में शरीर चलाया। जी जी। जी महाराज जी। यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज ठाकुर का कैसे जाएगा शरीर? वो तो 6 महीने निर्विकल्प समाधि में थे। अरे वो तो ये ईश्वर को, भगवान थे, अवतार थे, हाँ ईश्वर को अवतार थे थे, भाई। ये तो मुझे- ये सब, ये रूल्स रेगुलेशंस लगते नहीं वहां पे। हाँ ये ये सब जो है ये लोगों सब ने जीवन साधक के लिए जीव बनाया, कोटि के अवतारों लिए। के लिए थोड़ी बनाया। जी वही। हाँ, हाँ ठीक है, बोलो दिलीप भाई। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh mother, you made the main deity into 5. Yes. वो ये ऐसा है कि ये जो है ये आप लोगों ने सबने देखा कि नहीं देखा? ये ये कहाँ गई शिवानी? शिवानी, शिवानी तुमने इसको मेंशन किया है ना? हाँ। हाँ, ये 5 लेवल की बात हो रही है ना? हम्म। तो ये है 5। ये मैंने देखा है इसको, कहाँ मिला मुझे ये, शायद तंत्रों में है ये। अच्छा। इसमें 5 लेवल्स हैं। माँ जगदम्बा, तुमने राम प्रसाद का भजन है, राम प्रसाद भक्त का भजन है कि माँ तुमने 5 का रूप ले लिया है। ये 5 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तुमने बोला गणेश, लेकिन दूसरे बोलते हैं सूर्य। जी। अच्छा। और Yes. 5वां है दुर्गा। ठीक है महाराज। तो ये 5 जो है ये भगवान के 5 देवताओं के रूप हो गए। जी। तो दिलीप भाई ये मतलब है। लेकिन जब Okay. साधक उच्च कोटि पे जाता है तो सब एक हो जाता है। सेकंड लाइन में भी यही है। जी। तो जो भजन के वहां पे लिखा है, तुम पढ़ोगे वहां पे, उसमें 5 की बात है, उसके हाँ। नीचे एक और लाइन है जिसमें लिखा है कि सब एक हो जाता है। पढ़ो तो, मिला तुमको? Dissolves into one. dissolves into one.
जब साधक That is- आगे जाता है, पहले पहले अलग अलग अंतर होता है, उसके बाद dissolve into one। सच जी, पूछा जाए, महाराज। मतलब ये है कि कोई आदमी राम का भजन करता है, कोई कृष्ण का भजन करता है, कोई दुर्गा का करता हाँ। है, कोई काली का करता है, कोई शिव का करता है, लेकिन जी। अल्टीमेटली वो एक में विलीन हो जाते हैं। into one, okay। और चलो। महाराज जी, हाँ, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क क्यों लग गया है? या अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मोड्स ऑफ वर्शिप, ओ मदर, you have made the main deity into five. Now, हाँ। when the aspirant dissolves five into one, how will you survive? ये क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन लेटर के है ना, अंदर है। भक्त जो है ना, भजन भजन में गाते हुए कहता है कि जब सब कुछ हाँ। विलीन हो जाएगा तो माँ तुम कैसे बचोगी, तुम भी मुक्त हो भजन डूब जाओगी। ये हाँ, इस हाँ। प्रकार से है ना, जी, बच्चा माँ जी। से कहता है कि माँ मैं सब खा जाऊंगा तो तेरे लिए क्या बचेगा। यस, ये प्रश्न नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ हाँ, नहीं हाँ, बचेगा। बराबर। जी महाराज जी, बहुत बहुत क्लियर हो गया, बहुत clear। और मेरा लास्ट Thank you, क्वेश्चन महाराज। है महाराज जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है लेटर नंबर 129। अब इसके अंदर महाराज जी ये जो श्लोक दिया है श्रीमद् भागवत का, हाँ। द भागवतम सेज, he who has shunned the ego, the sense of agency, and has taken refuge in God wholeheartedly, no longer has any debt or obligation to the deities, sages, creatures, relations, men and men's. He is the servant of none else but the Lord, and being so, he fulfills his obligation to all and is free from the sin of failure to do his duty. महाराज जी, ये पूरा श्लोक है, उसको जरा आप समझा दें। समझाते हैं, यदि आप किसी के शरणागत हो जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है जी, ना, आपने किसी हाँ। सेठ से पैसा लिया है, किसी दुकानदार को आपको देना है, ये सब हाँ। है। अब जाके आप राजा के शरणागत हो जाइए। बराबर। जी, राजा के प्रभु मैं तो शरणागत प्रभु, तुम जो राजा कहता है मैं तुमको स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे शरण में आए हो, मैं तुम्हारा सब तरह से देखूंगा। तो अब वो जो सेठ आएगा उसके पास में, या दुकानदार आएगा कि मेरे पैसे दो, तो वो आएगा क्या? वो तो राजा के पास जाएगा ना। नहीं, हाँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर कोई आदमी पूरी तरह भगवान पर शरणागत हो जाता है, यस, भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसको और किसी चीज की काम की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी महाराज जी, समझ में आ गया? हाँ, आ गया महाराज जी, पूर्ण शरणागति होना चाहिए। हाँ, पूर्ण शरणागत। महाराज नरसिंह मेहता का यही स्टोरी है, हाँ, है ना। बहुत से हाँ, भक्त वो की स्टोरी है। भगवान खुद जाके उसका वो करते थे ना। हाँ जी, हाँ, हुंडी शादी स्वीकारी। थी, घर में शादी थी बेटी की, तो ये भजन कर रहे थे, भगवान खुद सब सामान लेके चले आए, हाँ, गहना हाँ, कपड़ा सब। हाँ। जी महाराज जी, प्रणाम। तो दिलीप भाई, जी महाराज जी, दिलीप भाई, अब आप ये आप हम चाहते हैं आपके दर्शन होवे, ये शरणागति का भाव आपके जीवन में होवे, कितना मजा बस आएगा। महाराज, बस ये आशीर्वाद चाहिए, ये आशीर्वाद चाहिए महाराज। हम अच्छा, आपके चलो। शरणागत हो गए पूरा। अच्छा, कुंडू आ जाओ, कुंडू। Yes, Maharaj. हाँ। Maharaj, letter number 117. जी, Now, I couldn't understand the Guru Tattva. How can Guru and Ishtam be identical? Guru क्या leads the प्रश्न? disciple to Ishtam. Like Thakur said that Guru is like a companion. By this, I understood that Ishtam is the goal. The Yeah, sloka in Guru Gita seems to extol the importance of Guru, nothing more. To put it in the other way around, why do we call Thakur Guru Maharaj? Is he not our Ishtam? देखो 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 देखो, क्या बताया है?
ठाकुर क्या कहते हैं, गुरु आते हैं क्या करते हैं? Like a companion, he leads नहीं you नहीं to the. नहीं नहीं, ये भी तो है और ये भी तो होता है। ठाकुर जी भी बोले हैं कि गुरु आते हैं, अपना इष्ट का दर्शन कराते हैं, देखो ये तुम्हारा इष्ट है, हाँ, और दिखाते गुरु जो हैं। है उसके बाद में इष्ट में विलीन हो जाते हैं। हाँ, ठीक ठीक। होता है तो है। तो इष्ट ही जो है वो हमें मार्गदर्शन देने के लिए गुरु के रूप में आते हैं। अगर ये हम कहें तो गलत होगा क्या? हाँ, ये समझ में नहीं है, मतलब ये उल्टा हो गया ना, एक गुरु इष्ट में विलीन हो गया, इतना तक समझ में आया। नहीं, उसके पहले इष्ट जो है वो गुरु के रूप में आते हैं तुमको मार्ग देने बताने के लिए, ओके। मंत्र देने के लिए, तुमको हम्म। साधना पर बताने के लिए। इष्ट जो है वो गुरु के रूप में तुम्हारे पास आए, उन्होंने सब बता दिया। इसलिए बार बार बोलते हैं गुरु और इष्ट में कोई अंदर नहीं करना, है ना। बांग्ला अच्छे की ना, वही तो अच्छे। ना गुरु अच्छे। इष्ट जे करे भेद तारे की होय, बांग्लाয় কি সারে সারে হয় কি বলছেন? যে না, করে গুরু ইষ্টের ভেদ তার সার কিছু হয় না কি, বাংলা আছে না একটা এক্সপ্রেশন আছে না? हैं? না, এটা মহারাজ ঠিক জানি না। तो वो है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव यही सब कहते हैं ना। हम्म। तो क्या ऐसा है कि हम जो है वो इष्ट को भौतिक रूप से नहीं जान पाते। हम्म। तो गुरु जो है वो निकटतम आध्यात्मिक सत्य हमारे पास में है, लेकिन हमारे सामने गुरु ही होते हैं। जब तक प्रकट अवतार प्रकट रूप से हमें न कहें, इसलिए कहते हैं अवतार कितनों को प्राप्त होता है भाई? वो तो अवतार हुए, हम लोग को तो प्राप्त हुए नहीं अवतार ना। तो फिर हम गुरु को ही लेकर काम चलाना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो गुरु है वही इष्ट है। साधना करते करते अर्थ में यही होता है कि गुरु आते हैं, देखो ये तुम्हारे इष्ट, देखो दर्शन करो। जैसे हमने दर्शन किया, साधक उसी के साथ देखा कि गुरु जो है वो इष्ट में विलीन हो, तब उसको लगता है ओहो मेरे गुरु इष्ट ही मेरे गुरु के रूप में मेरे को सब समय मार्ग बता रहे थे। इज दैट ओके? महाराज इसका मतलब है इष्ट खुद ही आते हैं, जब हमारी दीक्षा होती है तो इष्ट खुद ही आते हैं और हमारी दीक्षा कराते हैं। इसलिए कहते हैं कि सही वक्त नहीं होने पे दीक्षा नहीं होती, बिकॉज गुरु ही आते हैं। बिल्कुल ठीक है। और बार बार कहा जाता है शास्त्र में, देखो गुरु और इष्ट में अंतर मत करना। नहीं महाराज, मैंने एक बार और बताइए, मतलब मैंने ये लिटरली लिए थे, लाइक हमारा जैसे दीक्षा हुआ था, गुरुदेव ने बैठ के बताया कि वो तुम्हारा इष्ट है, तो इष्ट दर्शन हो गया। एंड देन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग एंड सेड कि ऐसे ऐसे ध्यान करना चाहिए एंड मर्ज योर गुरु इनटू इष्ट। ये भी कहा ना उन्होंने? हाँ, ये कहा है बस। ओके। सो मैंने ये नहीं समझा कि इष्ट गुरु के रूप में आता है, इसको एक बार और बता दीजिए इसको। वही तो मैंने कहा, यानी ऐसा है कि इष्ट को तो हम जान नहीं सकते। इष्ट जो है हमारे लिए वो एक्स है, वो तो सूक्ष्म है, वो हमारे मेंटल स्टेट के ऊपर है। ज्यादा से ज्यादा हम इष्ट का एक फोटो देख सकते हैं या मूर्ति देख सकते हैं, रामकृष्ण की मूर्ति देख ली या कृष्ण की मूर्ति देख ली, इसके अतिरिक्त हम इष्ट को नहीं जान सकते। इष्ट क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे भाई ये मेरे पास आ जावे तो मैं वो गुरु का रूप लेके मानो आते हैं। तो गुरु का रूप डायरेक्ट है, हम टच कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं उससे। मतलब गुरु मिल गया तो एक तरीके से हमारे ग्रेस ऑफ गॉड तब से ही शुरू हो गया, नहीं तो गुरु नहीं मिलना था। बना क्या? अच्छा नहीं बिना बनाए। ठीक है करो। तो महाराज जी एक मिनट, तो हमने हमारे गुरु में रामकृष्ण देव के दर्शन कर सकते हैं? करना चाहिए। यहाँ तक कि जो भी सच्चे गुरु है ना, हाँ, वो जब कहते हैं दीक्षा दे दी उसके बाद कहते हैं देखो मैं गुरु नहीं है, वो रामकृष्ण तुम्हारे गुरु है। हाँ, यहाँ तक कहते हैं वो।
मैं तो उनका मात्र हूँ, आई मीन यानी उसका एक रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, हाँ, डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू फिजिकल गुरु। ओके, सच पूछा जाए तो इष्ट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुरु जो है वो इष्ट ही है, इष्ट ही भगवान, इष्ट ही गुरु के रूप में आते। ओके जी महाराज जी। नहीं महाराज, तो इसके मतलब मैं जो अब तक जो समझा है, इसके मतलब जो मुझे गुरु मिला है, that itself is a mark that I have got some grace of God, तब भी ये गुरु लाभ हुआ है, नहीं तो नहीं होना था। डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ महाराज, डेफिनेटली, यानी इष्ट ये चाहते हैं कि हम उन्हें प्राप्त करें, इसलिए उन्होंने गुरु का रूप लेके हमारे पास आए हैं। यस महाराज। महाराज एक प्रश्न है जो हम प्रेसिडेंट महाराज को प्रणाम करते हैं, उसमें भी इष्ट ही देखना चाहिए। हाँ हाँ, यानी वो ये प्रेसिडेंट महाराज जो है वो भगवान श्री राम कृष्ण के वो हैं, रूप ही है। श्री राम कृष्ण के वे वो है रिप्रेजेंटेटिव है। सेकेंड। हाँ महाराज। Now next question Maharaj, the letter is 118. This letter is addressed to a monk, जैसे लिखा है पढ़ के लग रहा है। Maharaj asks to give up all plans and forbids to save money. How do we reflect these ideals in our life as householders? देखो, इसको दो है, ऐसा है कि मेंटली, फर्स्ट ऑफ ऑल mentally accept monastic ideal as the highest ideal. Mentally, spiritually, ideally you accept from sannyas life as the ideal life. Is that okay? Point is clear? हाँ ठीक। अच्छा, सेकेंड इज जैन लोग जो है वो क्या है कि वो जैन हाउस होल्डर्स जो हैं वो मोनेस्टिक लाइफ को लीड करने का भी प्रैक्टिस करते हैं। दो प्रकार से, एक तो यह है कि बीच बीच में 7 दिन के लिए कहीं मोनेस्ट्री में चले गए, जैन आश्रम में चले गए और वहां पे 7 दिन तक वो मुंह पे कपड़ा लगा लेते हैं और वे ऐसे रहते हैं जैसे सन्यासी रहते। तो एक्चुअली ट्राइंग टू लीड 7 दिन के लिए क्या, फिर वापस आते। और तीसरा लेवल ये इस प्रकार का होता है कि ग्रेजुअली वो 60 बरस की उम्र में रिटायर हो जाते और रिटायर होके एंड लिव लाइक सन्यासी। एक्चुअली सन्यास नहीं लिया, ऑफिशियली उन्होंने व्रत नहीं लिए, लेकिन एक्चुअली दे स्टार्ट लिविंग एज सन्यासी। तो उसको कहते हैं श्रमण भूत प्रतिमा, यानी लेवल्स हैं 14 लेवल्स हैं, उसमें हाईएस्ट लेवल है श्रमण भूत प्रतिमा। सन्यासी नहीं हुए हैं लेकिन सन्यासी जैसे वो रहना चालू कर देते हैं। ठीक महाराज 3 कौन कौन सा है? एक तो 7 दिन तक रहते हैं और एक ये आपने बोला श्रवण भूत प्रतिमा, और एक कौन सा है? एक मिनट यानी उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली एक्सेप्ट सन्यास द आइडियल इज द हाईएस्ट। हाँ अच्छा, ये एक है। ओके, मेंटली के भाई ऑपरेट कर ले, मैं हम लोग वी आर वेरी सेटिस्फाइड। आज गृहस्थ है तो अच्छे गृहस्थ है, ठीक है, नो यानी वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। स्वामी जी कहते हैं ना, सन्यास और गृहस्थ में क्या डिफरेंस है मालूम है ना? वे सूर्य और एक दीपक में जो अंतर है इस तरह का है ना, समुद्र और एक थोड़ी सी वो उसमें जो अंतर है इस प्रकार का सन्यासी और उसमें है। तो आइडियली यू एक्सेप्ट सन्यास, सेकेंडली बीच बीच में सन्यासी जैसा रहो, और थर्डली एक लाइफ के लास्ट पोर्शन जब आएगा तब अल्टीमेटली तब सन्यास होने के पहले यू स्टार्ट लिविंग इन एन आश्रम में जाके रहना चालू कर। ठीक है, मतलब now that we had already gone through those 2 stages of आश्रम, मतलब जीवन की जो आश्रम, अभी 3rd आश्रम में जाना ही चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा एक्सक्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी मतलब now when we are reading these letters, when we are going through these ideals, when we are knowing them, we have to practice them at this stage of life where we are presently. There is no other excuses. We have to. Yes, that is true. Yes, man. अच्छा, हो गया?
Maharaj, last question, Maharaj. Letter is 124. You have explained these 7 stages, but what is unitive knowledge? यूनिटिव यानी ब्रह्मात्म ऐक्य बोध, हम्म, अहम ब्रह्मास्मि बोध। हाँ, यानी That उसमें आप देखो नीचे नीचे एक्सप्लेन भी किया उन्होंने। नॉलेज दैट ही इज ब्रह्मन बियॉन्ड पेयर ऑफ अपोजिट्स, द्वै अद्वैत ज्ञान, दिस इज नॉन यूनिटिव नॉलेज। तुम पढ़ो उसको, रीड पैरा ऑन पेज नंबर 24, हाँ, वही Maharaj. 211 पे। नहीं, 211 नहीं, ये इसमें है 211 हाँ Maharaj. 211 से हाँ. क्वेश्चन पूछा है, उसे कंटिन्यू हाँ. पढ़ लो। As illumined soul has clear knowledge of the real and the unreal, therefore his mind is never identified with unreal objects, whereas an ordinary person is identified with the unreal objects through eye and mind. As a result of this ignorance, he suffers from unending miseries. Ignorance is bondage and knowledge is liberation. When this unitive knowledge dawns on a person, he becomes Jivan Mukta. और or पढ़ो liberated in life. आगे पढ़ो जीवन, और पढ़ो कुछ ऊपर है कि नीचे है कि नहीं। or liberated in life. They are called Jivan Mukta or the knowers of Brahman who have attained unitive knowledge while living and Then it comes Yoga Vasishtha. are not bound by past, present or future. Due to prarabdha, the result of past karma, a Jivan Mukta lives in the body and experiences the functions of the body. In other words, he may look happy or unhappy because of the contact of good or bad things, but he never loses his even-mindedness because he has the knowledge of his true nature. That is, he is Brahman, beyond the pairs of opposites. यही इज ब्रह्मन, Yes, देयर इज यूनिटिव नॉलेज, that is unitive knowledge. Yes, ma'am. ही इज ब्रह्मन बियॉन्ड द पेयर ऑफ अपोजिट्स। Yes, Maharaj. हाँ. And then 7 stages in Yoga Vasishtha you have already explained, Maharaj. हाँ. महाराज फोर्थ स्टेज को स्टेट ऑफ ड्रीम कहा गया है, स्टेट ऑफ ड्रीम। नहीं नहीं, फोर्थ स्टेज ऑफ दिन नहीं है, वो तो है तनु, ये देखिए सत्वापत्ति है, भगवान में सत्वापत्ति, यहाँ पर हाँ. लिखा द स्टेट ऑफ जीवन मुक्ति स्टार्ट्स फ्रॉम द फोर्थ स्टेज विच हाँ. इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट ऑफ ड्रीम। No, it may be called, but it is Called, it हाँ. it may be called. That's a different thing. अच्छा ठीक है। Rita The first to the Vishwas. third stage. Yes, Rita, Swamiji. हाँ, Yes, Pranam Swamiji. हाँ, Letter 122, page 204, 205. Here Swamiji quotes Sri Ramakrishna saying to Swami Vivekananda, he who was Rama and Krishna is now Ramakrishna in this body, not from the standpoint of your Vedanta. But Swamiji has explained, I am not clear as to what Thakur conveyed by the last phrase, not from the standpoint. तुम्हारे कुत्ते को दूर ले जाओ तो Hey, chup, chup. चुप तो कर, चुप कर। Huh. You said that's why he kept quiet. तो ऐसा है कि जो कहना जो राम जो कृष्ण तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं, Huh. according to Vedanta there is no Rama, no Krishna. अच्छा. I am जो मैं हूँ, जो ब्रह्मेशानंद है वही राम है, वो कृष्ण है, सब एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, ये वेदांत की दृष्टि से। हाँ. श्री राम कृष्ण कहते हैं तेरे वेदांत की दृष्टि से मैं राम कृष्ण नहीं हूँ, राम कृष्ण तो नहीं रहेगा उसमें वेदांत। That is true. ये वेदांत, ये अवतार जो है ये वेदांत की दृष्टि से नहीं होते। जो राम हुआ था, जो कृष्ण हुआ था, अब राम कृष्ण हुआ था, अब राम कृष्ण हुआ है। वेदांत में नहीं होता ये सब। No. ठीक है, चलो। महाराज स्वामी जी के लेटर्स में
स्वामी जी ने कहा ना छोटा वेव और बहुत बड़ा वेव, वो डिफरेंस होता है, मतलब छोटा क्या? छोटा वेव समुद्र में, इन द हाँ सी, हाँ 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 स्मॉल हाँ, तो वेव एंड बिग वेव। हाँ तो ना बड़ा वेव ये है अवतार, मतलब महापुरुष। हाँ ना, वो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, स्वामी जी वो एक ड्रॉप भी जो है ना वो ओशन में मिल गई तो ओशन हो जाती है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ वेदांत की दृष्टि से ये वेव एंड ओशन आर नॉट डिफरेंट। हाँ हाँ, ओके। My second question, Swamiji, you have already answered the ठीक है। 7 stages. But अच्छा। all that I wanted to know is how to know in which stage one is in. यू फाइंड आउट, How? वो पढ़ो ना उसको। जनरली वी आर ओनली फर्स्ट इन द फर्स्ट 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज। अच्छा सतीश, तुमने क्वेश्चन पूछा इस बार? जी महाराज, जी महाराज। जरा पूछो तो, मेरे को तो याद ही नहीं आया, वहां देखा नहीं, मिले नहीं, जी कहाँ हो गया? महाराज। अच्छा, पूछता हूँ महाराज। हाँ एक मिनट महाराज। जी महाराज, my first question is, Sri Krishna in Gita says, though I am eternal and unborn by nature, though I am Lord of the universe, I accept birth through Maya by subjugating my Prakriti. महाराज, इसका मैंने समझना चाहता हूँ. What does this mean, subjugating my Prakriti? Cannot Jiva also subjugate Prakriti and take birth? नहीं, ऐसा है कि मैं तो प्रकृति के, हम लोग जो है, हम लोग जो, हम जीव जो है, मानव हैं, ये हम लोग प्रकृति के गुलाम हैं। जी जी महाराज। ये तो ठीक है। जी महाराज। अब भगवान जो है वो प्रकृति के मास्टर हैं। जी महाराज। पर वो प्रकृति को जन्म लेना है। जी महाराज। तो क्या किया उन्होंने? प्रकृति को एक्सेप्ट कर लिया। बिना अच्छा। उसके तो जन्म नहीं ले सकते। राइट राइट वो राइट। 3 गुणों को ले लिया उन्होंने। जी जी महाराज। लेकिन वो अपने हाथ में रखते हैं उसको, जी, क्योंकि ही इज मास्टर आल्सो। ठीक 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 महाराज। ओके, सेकंड। जी जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, अकॉर्डिंग टू डुअलिस्ट फिलॉसफी, this world is not unreal and it consists of Prakriti, Jiva and God. These 3 are eternal and real, and one gets liberation by devotion to God. Maharaj, according to Sankhya philosophy, only Purusha and Prakriti are real. Maharaj, how does one get liberation or nirvana by Sankhya Yoga practice? now सांख्य योग में जो है वो साधना के द्वारा करो, ध्यान जप करो। योग जो है उसमें पतंजल योग सूत्र में शम दम, ये अपने अष्टांग योग है, वो करो। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समान, वो नहीं, वो अपने विवेक साधन चतुष्टय। हाँ, जो 8 अष्ट योग है ना, क्या है? पहला क्या है? यम नियम प्राणायाम श्रद्धा ध्यान समाधि, इसके द्वारा ही मुक्त हो जाओगे। तो मुक्ति कैसी होगी? निर्वाण जैसी होगी महाराज? जैसे निर्वाण यानी यू बिकम सेपरेट फ्रॉम प्रकृति। जी जी महाराज, प्रकृति से अलग हो जाएंगे आप। प्रकृति से अलग हो जाओ। बट रहोगे अलग ही, जैसे मतलब नहीं, वो प्रकृति भी रहेगी, तुम भी रहोगे, मुक्त रहोगे। जी जी महाराज, जैसे वेदांत में है कि वो तो परमात्मा में नहीं, वेदांत में तो सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। जी जी महाराज, यहाँ पे प्रकृति भी रहेगी, तुम भी रहोगे, जीव भी रहे। राइट। लास्ट क्वेश्चन महाराज, द पाथ ऑफ कर्मा इज फॉर दोज हु हैव डिजायर्स एंड yet not disgusted with work and its fruits. महाराज, इसको क्या, इसी को निष्काम कर्म कहते हैं जो गीता में दिया हुआ है? नहीं, क्या है प्रश्न, क्या है तुम्हारा? क्या है वो? तो पाथ ऑफ कर्मा, जो लोग कर्म को मानते हैं उसके लिए पाथ ऑफ कर्मा यानी निष्काम कर्म, कर्म योग। नहीं महाराज, उसमें ये है, ठीक है, वही तो है। जी महाराज। जो लोग महाराज, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, पूछो। महाराज उसमें है ना, द पाथ ऑफ कर्मा इज फॉर दोज हु हैव डिजायर्स एंड yet not disgusted with work and its fruits.
महाराज हाँ। सोसारी की बात कर रहे हैं कि इसको वर्क के साथ अटैचमेंट है, फूड के साथ अटैचमेंट है, तो ये निष्काम कर्म कैसे हुआ? नहीं नहीं, उसको जो लोगों को अटैचमेंट है उनको कहा जाता है कि भाई देखो निष्काम, अटैचमेंट कम करो, स्वनिस्वार्थ रूप से करो, आसक्ति छोड़ने के लिए छोड़ने का प्रयत्न करो, ये हो गया निष्काम कर्म। और जब ये जी, जी, पूरी महाराज। आसक्ति जब समाप्त हो जाएगी तब मुक्त हो जाएंगे। जी महाराज, जी महाराज, ठीक है महाराज, ठीक है। इतु प्रणाम घोष है, महाराज। इतु आ जाओ। जी प्रणाम महाराज। हाँ भाई आ जाओ। हाँ, प्रश्न मेरा करो। पहला प्रश्न है, one can test the greatness of a person by observing his small actions and behavior. What should be the small actions and behavior which indicates the greatness of the character? ये उदाहरण ले लो, एक ठाकुर का दृष्टांत ले लो, छोटा सा जी। प्रश्न दृष्टांत है। वो जी। ठंड के दिनों में थे और शरद महाराज ठाकुर की सेवा कर रहे थे। जी। तो ठाकुर रामकृष्ण जी, शशि शशि महाराज। महाराज, हाँ, तो वो किसी काम के लिए बाहर गए, तो जी। उनके ऊपर कपड़ा नहीं था, थोड़ा बनियान ही पहने थे, ठंडी का समय था। बाहर अंदर आके देखते हैं कि ठाकुर जो है वो उसके खिड़की अपने वो अलमारी में से शॉल निकाल रहे हैं। उन्होंने डांटा, अरे क्या कर रहे हो आप, उठ बैठ सकते नहीं हो, कैंसर हो रहा है आपको और ये कर रहे हो तुम। अब ठाकुर ने कहा कि तुमको वो ठंड लगेगी, इसको निकालने लेने के लिए मैं तुमको ये लेके आया हूँ। शॉल। अब देखो छोटी सी बात है ना, घटना कितनी छोटी बात है, लेकिन ये इसमें महानता हो कि नहीं, ठाकुर की महानता। और ठाकुर के जीवन में देख लेना, छोटी छोटी बातों में इतनी महानता है। यानी लीला श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ोगे तो छोटी छोटी घटनाओं से भरा हुआ है, वहां पे समाधि वगैरह की बात तो नहीं है ज्यादा, ठाकुर को कितने प्रकार की समाधि होती है सब नहीं है, छोटी छोटी बातें ठाकुर की हैं, वो जीवन में उतारना है हम। ये हो गया, ठीक है, पॉइंट है। जी। हाँ। जी, अच्छा, मेरा सेकंड प्रश्न है, still it is better to be born as a companion of the Lord for the good of mankind than to attain nirvana. So after nirvana, after nirvana means, my question is, after nirvana jiva is united with the Brahman, but as a companion of the Lord one has to remain as jiva. So in what respect it is better? अभी डिस्कस तो किया मैंने, अभी बात किया दोनों दो प्रकार की चॉइस। इसमें सुनो और भी बताते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, may I be born again and again and suffer thousands of miseries so that I may be able to serve the poor, the downtrodden। जो लोग हैं उनके लिए मैं बहुत कष्ट हो लेकिन मैं उनके लिए सेवा करना चाहता हूँ। और फिर एक वो प्रसिद्ध श्लोक है, न त्वहं कामये राज्यम न सुखम न पुनर्भवम कामये दुख प्रतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम। मैं राज्य नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता और पुनर्भवन यानी पुनर्मुक्ति नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ प्राणियों के दुख कष्ट को दूर करना। और एक और श्लोक है, कोनो न उपायो हम सर्वदे ये शाम सर्वदेहिनाम अंत प्रवेश सततम भवेयम दुख भाग भाव। कैसा कौन सा उपाय है, मैं कैसे करूं कि मैं दूसरे लोगों के शरीर में घुसकर उनके दुखों को मैं अनुभव करूं। तो लोगों के दुखों को दूर करना ये एक उच्चतर आदर्श बताया गया है। क्यों? अपने जब मुक्त हो जाते हो तो दुखों से, सब लोगों से अलग हो जाते हो, लेकिन यहाँ क्या है, सबके प्राणियों के भीतर ढुक जाते हो। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने कहा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं मुक्ति चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा, क्या कहा था, ठाकुर ने क्या कहा था, छोटी बात हो, तो बहुत हीन बुद्धि है, इससे भी ऊपर एक की स्थिति है। तो क्या स्थिति है, समस्त प्राणियों के साथ अपने एकत्व को अनुभव करना। जी। यानी हम अकेले मुक्त हो जाए नहीं, समस्त प्राणियों के साथ एक अनुभव करना। You become
तो सारे लाखों लाखों ब्रह्मेशानंद, लाखों हेतु हो गए, जितने लोग हैं सबके सब हेतु हो गए। ये उच्चतम आदर्श। चलो और थर्ड प्रश्न है महाराज जी, एक मिनट ऋतु जी, व्हाट आर दीज टू श्लोकास फ्रॉम, वेयर आर दे फ्रॉम महाराज जी? ये अब कहाँ से है ये कह नहीं आता, ये सुभाषित जैसे हैं। अच्छा, हाँ, ओके। मैं तुमको भेज दूंगा, इफ यू वांट आई कैन। ये इसमें आप देखो, यूनिवर्सल प्रेयर्स में तुमको मिल जाएंगे। अच्छा, ये ईश्वरन जी की यूनिवर्सल प्रेयर्स है ना, हाँ हाँ, उसमें उसमें मिल जाएगा। आखिरी में देखो कुछ अच्छे श्लोक मिल जाए। ठीक है महाराज। और नहीं तो मैं भेज दूंगा तुमको बात। ओके महाराज जी। और संडे मेरा क्लास में भेज दीजिए महाराज, हाँ? संडे All क्लास right. में भेज दीजिए। हाँ, अच्छा, ओके ओके सर। हाँ, अच्छा, मेरा थर्ड प्रश्न है फ्रॉम द टेक्स्ट, द हाँ। भागवतम सेज he who has shunned the ego, the sense of agency, and has taken refuge in God wholeheartedly, no longer has any debt or obligation to the deities, sages, creatures, relations, men and men. Please explain this part. ये तो कर दिया। तो हो गया। जिसने, हाँ वो तो अभी बोला था, जिसने होल हार्टेडली भगवान में शरणागत हो गए। ऐसा है कि हमारी ड्यूटीज हैं, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, हमारे माता पिता के प्रति कर्तव्य है, हमारे मित्रों के प्रति कर्तव्य है। ये जितने प्रकार के बहुत सारे कर्तव्य बता दिए हैं, गुरु के प्रति कर्तव्य है, ये सब बता दिए है ना। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान में शरणागत हो जाता है, उसके फिर ये कर्तव्य नहीं रहते। बहुत ऊपर चला गया है शरणागति जो है, ये बहुत उच्च कोटि का है कार्य ये। और महाराज ठीक ये बात है, क्योंकि फिर वो उसके हाथ में नहीं रहता, उसका अहंकार ही चला जाता है। अब भगवान उसको वो दुख देवे, कष्ट देवे, अब उसके हाथ में नहीं है। वो कह रहा है कि मैं अभी करोड़ों नरक में भी जाऊं, लेकिन लोगों का एक का यानी वो है कि मैं अगर बार बार जन्म लूं, अगर एक प्राणी के दुख के कष्ट को दूर करने के लिए भी अनेक जन्म लेना पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार। महाराज ये गीता के ये श्लोक से मिलता है कि आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम? नहीं 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 नहीं। प्रणाम महाराज। महाराज जी हो गया हो गया, महाराज को नमस्कार करने हैं। महाराज एक प्रश्न रह गया महाराज, हैं? एक प्रश्न मेरा है। ये हाँ, जो बोलो, जल्दी करो। 207 नंबर पेज में जो ज्ञानियों के बारे में, उसके बाद दे who consider this world is divine manifestation of God, so they do not say that it is unreal. They discard the avidya, ignorance aspect, and accept the vidya, knowledge aspect. So do not try to attain nirvana. इसमें मेरा खाली प्रश्न है, ये ignorance और ये विद्या, knowledge, ये क्या वो ऐसा है कि ये जो है, ये जगत जो है वो अविद्या के कारण है, अज्ञान के कारण है, मिथ्या है। ये जो बोलते हैं ना, ये संसार में हम फंस गए हैं ना, ये हम अज्ञान के कारण है, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते इसलिए फंस गए हैं। ये मानते हैं, इसलिए हम जगत में मिथ्या संसार से छूटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग जो है वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं मानते। दैट इज द पॉइंट। इसमें जो दो वर्ड लिखा है ना, अविद्या और नॉलेज, विद्या, अविद्या विद्या, इसका अर्थ क्या है होगा? अविद्या यानी ये जगत को सत्य समझना। अविद्या हो गया। और ये जो है वो सदा बना रहेगा ऐसा समझना। ये शरीर मेरा सत्य है, ये समझना। और विद्या, विद्या है मैं आत्मा हूँ, ये शरीर जो है वो मिथ्या है। ठीक है, ओके, बस। वेरी गुड, वेरी हो गया। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। अरे क्या प्रश्न तो पूछा नहीं देवाशीष, तुम्हारा प्रणाम। महाराज जी मैं पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन निकल गया, कई बार पढ़ा हूँ, पूछ सकता हूँ क्या? अब पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। हाँ, ये लेटर नंबर 121 में है। कथा उपनिषद सेज he is to be realized first as existence limited by adjuncts or upadhis
and then in his true transcendental nature. Of these two aspects, Atman realized as existence leads the knower to the realization of his true nature. इसको समझ में नहीं आया अमर जी। ऐसा है कि सबसे पहले ये तो स्वीकार करो कि ब्रह्मा भगवान है, वो नाम रूप वाले हैं, वो विष्णु है या राम कृष्ण है, ये सब यह स्वीकार करो। यह भगवान जो है उसको नाम रूपात्मक है, उसमें विथ एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद में हायर लेवल आएगा जब तुम ये स्वीकार जानोगे कि भगवान जो है ये नाम रूप से परे हैं। ये that is the word we have come to know, that is the higher level. ओ अच्छा, ठीक है। मगर और एक लास्ट था जो ये इसमें है कि enthusiasm, courage and strength, all these things are within you. ये तो हर आदमी में रहता है क्या? ये क्या फेथ होना चाहिए इसमें क्या? I mean, हर आदमी में enthusiasm, courage and strength डोरमेंट है ना? तो ये इसमें इसका मतलब इसको कई आदमी को फेथ होना चाहिए कि हमें ये enthusiasm है, courage है और strength है हम में। यही चीज बता रहे क्या? अरे सब में है। Whether you accept कि सब में है, बच्चा भी जानता है। ये फेथ का व्यापार है क्या? फेथ का बच्चा सुनो, बच्चा जब छोटा होता है डरता है, उसके बाद में उसको कॉन्फिडेंस आ जाए तो अकेले चला जाता है, पैदल चला जाता है स्कूल में, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है कि नहीं बच्चा भी? उसमें भी कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है, निर्भय होता है कि नहीं होता है? जी महाराज, जी महाराज। Now what is your question? ना मुझे समझ में आया महाराज जी, मिल गया क्वेश्चन, आंसर मिल गया। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। अच्छा प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी, अभी कुछ सवाल पहले आप कह रहे थे शरणागत के बारे में। मेरा सवाल यह है कि एक शरणागत कैसे रहता है? हाउ डज ही लिव? जो जिसको पूर्ण शरणागति हो गई है वो रहता कैसे? हाउ डज ही जैसे रहता है वैसा के वैसा ही रहता है। अच्छा, पहले रहता था वैसा के वैसा रहता है। अच्छा, मन में पूरा परिवर्तित हो जाता है, हित प्रज्ञ के साथ, यानी मेंटली इट इज चेंज। पहले वो समझता था कि मैं कर रहा हूँ, अब समझता है कि भगवान कर रहे हैं। जी। तो समाज महाराज जी, तो फिर इस सोसाइटी के लिए कोई काम का नहीं रहता, ये तो अपने कोई काम नहीं कर पाएगा जब तक उसको कमांड। नहीं, सब करते हैं। वो सब काम करता है सोसाइटी के लिए। वो जाता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं। गिरीश घोष को उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ अच्छा, ठीक है। गिरीश घोष कितना किया, सब किया, उसके बाद नाटक लिखे, सब किया। जी जी जी, सेंस ऑफ डूअरशिप चली जाती है। हाँ बस, और कुछ नहीं। समझ गए। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम अच्छा हुआ भाई, आई एम वेरी हैप्पी। About 24-25 people joined and there were very good questions. मोहिंदर, तुम बड़ी देर बाद आए। Yes, महाराज। 27 लोग थे। वाला तो कभी क्वेश्चन पूछते नहीं है, पहले से आगे बैठ जाती है, लेकिन पूछते नहीं है। पीयूष कुंज बीच में आए तुम, है ना?